اس سے پیشتر کہ میں خداوند کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کروں، میرے پاس ایک گواہی ہے، اور وہ گواہی یہ ہے کہ جس طور سے خداوند کے کلام میں یوئیل نبی کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے اور تمہارے خواب دیکھیں گے اور بزرگ بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ میں اصل میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ سو یہ ہے کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ سو میں بوڑھا ہوں، میں مانتا ہوں، میں خداوند میں خادم ہوں، بزرگ، اور یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا کچھ دن پہلے کہ کراچی میں ایک بہت بڑا خادم ہے، اور بلکہ دو ایسے خادم ہیں جن کا نام وہاں پر بڑا مشہور ہے، خداوند نے بہت وہاں پر برکت دے رکھی ہے۔ اور ایسا ہوا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں بائبل مقدس کی سچائیاں ان کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور بائبل کی ڈاکٹرین کو میں ان کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور وہ اس ڈاکٹرین کے ساتھ متفق ہوئے ہیں، اور میں خواب میں ہی بڑا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ خداوند میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جو خالص کلام ہے، یہ جو ایسا کلام ہے جسے کہ ہر کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا، خداوند تیرے ان بچوں نے اس کلام کو قبول کیا ہے، اور میں نے حوالے دے دے کر، ریفرنسز دے دے کر میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ یہاں پر یہ لکھا ہے، یہاں پر یہ لکھا ہے، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، اور وہ بڑے حیران ہو رہے ہیں، اور وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، اور ایک بڑا خادم چھوٹے خادم کو یہ کہہ رہا ہے کہ نعیم جو بات کر رہا ہے یہ بالکل خدا کے کلام کے مطابق ہے، اور ہمیں اس بات سے ایگری کرنا چاہیے۔ آمین۔ اب ہوا ایسا کہ مجھے آج ہی خبر ملی ہے تازہ، حالانکہ یہ رپورٹ دینا میرا کام نہیں ہے، چند گھنٹوں کے بعد بھائی عرفان آئیں گے، بھائی صاحب آئیں گے، اور آنے والے دنوں میں آپ یہ رپورٹ ان سے سنیے گا، لیکن چونکہ اس رپورٹ کا تعلق اس گواہی کے ساتھ ہے اور میرے خواب کے ساتھ ہے، اس لیے میں خداوند کا خادم ہونے کے ذریعے سے یہ بات خوشی کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جس جگہ وہ گئے ہیں وہاں پر خدا کے خادموں نے پاسٹر فرینک کو، پاسٹر نوبل کو اور پاسٹر عرفان کو نہ صرف ویلکم کیا ہے، اور وہاں پر ایک بہت اچھی میٹنگ ہوئی ہے، بلکہ ان خادموں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے زندہ کلام سنا ہی اب ہے۔ آمین۔ سو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی پریویلیج کی بات ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو اسیروں کی طرح نہ صرف گشت کرواتا ہے، بلکہ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ لوگوں میں استعمال کرتا ہے، اور لوگ برکت پاتے ہیں۔ آج میں چند ایک بنیادی باتیں آپ کے سامنے خداوند کے کلام میں سے کروں گا، میں بہت لمبا نہیں جاؤں گا، اور میری کوشش یہی ہوئے گی کہ سب غور سے سنیں، انٹرسٹ لے کے سنیں، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست آپ کی زندگیوں کے ساتھ ہے، ڈائریکٹ اس کا تعلق آپ کے ساتھ ہے۔ اور میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دینے لگا ہوں کہ یہاں پر زیادہ تر مائیں بیٹھی ہیں اور انہوں نے اپنے بچوں کو پالا ہے، گو باپ کا کردار بھی ہے کیونکہ وہی جا کے بازار سے دودھ لے کر آتا ہے اور بچے کے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آتا ہے، لیکن تو بھی ماں کا کردار بچے کی پرورش میں بہت اہم ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر بچے کی گروتھ رک جائے تو ماں باپ کو پریشانی لگ جاتی ہے کہ آخر ہمارا بچہ گرو کیوں نہیں کر رہا، یہ بڑھ کیوں نہیں رہا، اس کی عمر زیادہ بڑھ رہی ہے اور اس کا قد نہیں بڑھ رہا، تو انہیں فکر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور انہیں اس بات کا خوف اندر ہی اندر کھائے جانا شروع کر دیتا ہے کہ کل کو لوگ اس کے بیٹے کو یا اس کی بیٹی کو اب نارمل کہیں گے، اور کہیں گے کہ ان کی گروتھ نہیں ہو سکی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو بونا یا بونی کہا جاتا ہے، اور لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں، اور ان بچوں کو بھی ان چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آج جو چیزیں میں آپ کے سامنے یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے شاید نہیں ہو، گو بڑی سادہ سی باتیں ہیں، لیکن تو بھی
खुदावंद के कलाम में से मैं आपके सामने एक हवाला रखना चाहता हूं और वो इफ्सियों उसका 2 बाब है और उसकी 6 आयत है, बल्कि 6 और 7 में मैं पढ़ देता हूं। ये कुलसियों का खत है। Colossians chapter 2 verse 6 and 7। यहां पर लिखा हुआ है कि बस जिस तरह निकालने पहले हवाला Colossians chapter 2 verse number 6 and 7। कुलसियों उसका 2 बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत। यहां पर मरकूम है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत और खूब शुक्रगुजारी किया करो। खास फोकस जो है वो यहां पर है कि जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। जड़ का ताल्लुक नीचे वाले पोर्शन के साथ है और तामीर होने का ताल्लुक ऊपर वाले पोर्शन के साथ है। और खुदा ये चाहता है कि जो हमारी खुदावंद में तरक्की है, जो ग्रोथ है, वो दोनों तरह से हो। हम बढ़ते भी चले जाएं और खुदावंद में डीप भी होते जाएं। लेकिन ये बात तो खुदावंद के ताल्लुक से है, लेकिन इसके अलावा मैं बॉटनी के ताल्लुक से आपके सामने चंद एक बातें करूंगा। और चले मैं हवाला पढ़ ही देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, 1 कुरिन्थियों 3 बाब है और उसकी 5वीं आयत है, बल्कि 6 पढ़ता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, मैंने दरख्त लगाया और अपुल्लोस ने पानी दिया। गौर से सुनिएगा, हवाला चाहे ना निकाले, मैं बाइबल में से ही पढ़ रहा हूं, मेरा एतबार करें। यहां पर लिखा हुआ है कि 1 कुरिन्थियों 3 बाब और उसकी 6 आयत में कि मैंने दरख्त लगाया, ये पौलुस कह रहा है, मैंने दरख्त लगाया और अपुल्लोस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने। दरख्त किसने लगाया है? पौलुस ने लगाया है। पानी किसने दिया है? अपुल्लोस ने दिया है। और बढ़ाया किसने है? खुदा ने। इसका ताल्लुक, जो इस आयत का ताल्लुक है, उसका बराह रास्त जो हमारी ग्रोथ है उसके साथ है, मैं बता चुका हूं। लेकिन इस ग्रोथ का ताल्लुक बराह रास्त खुदा के साथ है, क्योंकि बोना मेरा काम है, पानी देना मेरा काम है, लेकिन बढ़ाना मेरा काम नहीं है। इसका मतलब है कि हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितनी मर्जी हम ट्राई करके देखें, हम कभी भी उसे बढ़ा नहीं सकते हैं। और मैं ऐसे लोगों के बारे में जानता हूं, अगर इसको रूहानी तौर पर देखें तो जिन दोस्तों को मैं पाकिस्तान में मिलकर आया था आज से कई साल पहले, और अब जब उनकी कोई लेटेस्ट न्यूज आती है तो सुन करके अफसोस ये होता है कि वो जहां खड़े थे, जिन मुश्किलों में वो पहले थे, आज भी उन्हीं मुश्किलात में वो हैं। जिन परेशानियों में वो तब गिरे हुए थे, आज भी उन्हीं परेशानियों का वो शिकार हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि उनकी तरक्की नहीं हुई, उनकी नशोनुमा नहीं हुई, वो आगे बढ़े नहीं हैं। हर एक इंसान की कोशिश होती है कि वो तरक्की करे, बढ़े, लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे कि इस बात का ताल्लुक किसके साथ है। अब मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ना चाहता हूं और वो है फिलिपियों का। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और मैं उसका आपके सामने पढ़ूंगा 3 बाब, बल्कि मैं 4 बाब पढ़ता हूं। 4 बाब की मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं 12वीं आयत। 12वीं आयत में लिखा हुआ है, हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना,
भूखा रहना और बढ़ना और घटना क्या लिखा हुआ है? सीखा है। यह बड़ी गौरतलब बात है कि बढ़ना और घटना, इसका जो लिंक है वो कहता है कि मैंने सीखा है। यानी इसका मतलब है कि अगर आप सीखेंगे ही नहीं कि कैसे बढ़ा जाता है, कैसे तरक्की की जाती है, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। प्यारे अजीज बहन और भाइयों, मैं आज खुदावंद के कलाम में से आपको ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि ये बेसिकली एक हुक्म है। ये एक हुक्म है, और ये हुक्म दिया किसने है? इसके पीछे कौन है? ये खुदा है। आप जानते हैं जब खुदा ने 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया तो उसने आदम को नर और नारी पैदा किया, अपनी छवि पर पैदा किया, और उसको एक बात कही थी। पैदाइशी किताब उसके पहले ही बाब में खुदावंद ने उनको एक हुक्म दिया था, और खुदावंद ने उनको ये कहा था कि ये पहला बाब और उसकी 28वीं आयत है, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो। यानी इसका मतलब है कि ये एक हुक्म है जो खुदा ने आपको दिया है, लेकिन अगर आप सीखेंगे ही नहीं, जैसे पौल कहता है कि मैंने सीखा है, इसका मतलब है कि हमें बढ़ने के लिए, हमें तरक्की करने के लिए कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, हमें तजर्बे के साथ मालूम करना पड़ेगा। और मैं ये बात बड़े वसूख के साथ कहना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म से कि माओं को ये बात कभी भी समझ ना आती अगर उनके पास बच्चे ना होते। बहुत टाइम लगता उनको ये बातें सीखने के लिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बच्चों ने अपनी माओं को सिखाई हैं। आमीन। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? जितनी माएँ हैं यहाँ पर, बच्चों ने उन्हें सिखाया है कि ये कैसे करना है। और मैं एक हंसी वाली बात आपको बताना चाहता हूँ कि वेरी ऑनेस्टली मैं अपने बेटे केलब को जब उसके कपड़े चेंज किया करता था तो मुझे पता नहीं होता था कि मैंने कहाँ से उसकी बाजू निकालनी है और कैसे मैंने उसको कपड़े पहने। एक दफा मैं उसको कपड़े उतार रहा था तो मैंने इतने अजीब ढंग से कपड़े उतारे कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अब बाजू कैसे बाहर आएगा। सो कभी कभी ये होता है कि हमें बहुत सारी चीजें बच्चे सिखा देते हैं, और ये सीखने का अमल है, क्योंकि अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप रूहानी तौर पर बरकत नहीं पाएंगे। सो चंद एक बातें थी जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं खुदावंद के कलाम में से कि आपको सीखना है। अब मैं एक शख्सियत की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं, एक ऐसी शख्सियत बाइबल मुकद्दस में से कि जिसको कुछ नजर नहीं था आ रहा, और वो भागा भागा अपने उस्ताद के पास आया है और उसको कहता है कि जल्दी से खेमे के बाहर आ जा, हमें चारों तरफ से अरामी फौजों ने घेर लिया है। तो उस खादम का नाम पता क्या था? जहाजी था। उसने ये बात अलीशा से आकर के की, और जब उसने आकर अलीशा को बोला कि अलीशा देख बाहर हमें फौजों ने घेर लिया है, तो अलीशा ने उसको बोला अब मेरे साथ आ। जब अलीशा उसे बाहर लेकर गया तो अलीशा ने उसको बोला कि खुदावंद तू अब इसकी आंखें खोल दे ताकि ये जान जाए कि जो हमारी तरफ है वो उनसे ज्यादा है जो वहां पर मौजूद हैं। और जैसे ही एलिया ने खुदा से दुआ की, खुदा ने जहाजी की आंखों को खोल दिया और उसने देखा कि एक आतिशी लश्कर है जो उसके ऊपर खड़ा है। इसका मतलब है कि उसका सारा खौफ जाता रहा जब उसकी आंखें खुल गई। लेकिन आपको यह जानकर अफसोस होगा कि उसकी आंखें तो खुल गई, लेकिन उसका जहन नहीं खुल सका। और चांदी अरसे के बाद, चांदी दिनों के बाद जब नुमान कोड़ी उसके पास आता है, नुमान कोड़ी जब उसके पास आता है और वो आकर कहता है कि
अलीशा को मुझे शिफा दे। और जब सारा कुछ हो जाता है और अलीशा को जो नुमान कोढ़ी है कुछ गिफ्ट देने की बात करता है, तो अलीशा कहता है कि ले जा इसको, मुझे तेरे गिफ्ट नहीं चाहिए। और जैसे ही वो रिफ्यूज करता है, वो अपने उन गिफ्टों को लेकर जब वापस जा रहा होता है, तो जहाजी क्या करता है? जहाजी ये करता है, सब कुछ छोड़ के भाग के जाता है और उस नुमान कोढ़ी को कहता है कि ये चीजें तो मुझे दे दे। तो इसका मतलब है कि उसकी आंखें तो खुल गई, लेकिन उसका ज़हन नहीं खुल सका, और उसकी ज़हन की नशोनुमा उस तौर से नहीं हो सकी। हालांकि उसकी रफाकत एक बहुत बड़े नबी के साथ थी, जो दूर की चीजों को ना सिर्फ देख लेता था बल्कि सुन भी सकता था। और आपको एक बड़ा मशहूर वाकया याद होगा कि शाह आराम जुझला जाया करता था कि हमारे अंदर की प्लानिंग्स, वो बातें जो हम इंडोर करते हैं, बाहर कैसे चली जाती हैं। और वो ये नहीं जानता था कि इस्राएल के अंदर एक नबी है जो उसकी आवाज को सुन सकता है। नबी सिर्फ देख नहीं सकता बल्कि सुन भी सकता है। और यहां पर हम देखते हैं कि एक ऐसे उस्ताद के साथ, एक ऐसे नबी के साथ जहाजी ने वक्त गुजारा है, लेकिन उसकी जो नशोनुमा है, उसकी जो ग्रोथ है, वो नहीं हो सकी। और जो कोड नुमान के पास था, बाइबल कहती है कि सारी जिंदगी जहाजी उस कोड के साथ जिंदगी गुजारता रहा। मेरे अजीज बहन और भाइयों, बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो मुझे और आपको ये बात सिखाते हैं कि हमें रूहानी तौर पर बढ़ने की जरूरत है, हमें रूहानी तौर पर तरक्की करने की जरूरत है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर मैं अक्सर एक बात किया करता हूं कि एक जगह हम गए तो वहां पर वो दादाजी अपने बंटी की बड़ी तारीफें कर रहे थे। तो हुआ ये कि जब हमने बंटी को देखा तो बंटी की हाइट छोटी थी, और बाद में पता चला कि उसका दादा उसको ऐसे बुलाया करता है कि बंटी ओडे दा ओडा जितना मेरा गोडा। सो ये बात है कि वो एक ऐसी मिसाल चल पड़ी कि बंटी ओडे दा ओडा जितना मेरा गोडा। इसका मतलब है कि बंटी है बड़ा अच्छा, लेकिन बंटी की ग्रोथ नहीं हो सकी। और मैं बता चुका हूं आपको कि ग्रोथ का बराह रास्त ताल्लुक मेरे और आपके साथ नहीं है, बल्कि खुदा के साथ है। क्योंकि पौलुस ये बात करता है कि दरख्त किसने लगाया है? पौलुस ने। पानी किसने दिया है? पौलुस ने, अपुल्लोस ने, लेकिन बढ़ाया किसने है? अब जब मैं ये आयत पढ़ रहा था तो मेरे लिए ये आयत एक जैसे बॉटनी का जो स्टूडेंट होता है, एक बड़ी अजीब सी लगी कि दरख्त कैसे लगाया है। सोचने वाली बात है, दरख्त नहीं लगता। लेकिन अब इंग्लैंड में जब मैंने देखा है कि मेरे घर के कॉर्नर के बाहर बने बनाए, पले पलाए, ताजा फ्रेश दरख्तों को प्लांट किया जा रहा है, तो बात समझ आई कि दरख्त भी लग सकते हैं। लेकिन तो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप दूसरे वर्जन्स होते हैं उनमें पढ़कर देखें, वहां पर दरख्त नहीं है, वहां पर इंग्लिश पढ़ कर देखा, सीड लिखा हुआ, और होना भी यही चाहिए था कि सीड की बात की है। और लिखा हुआ है कि सीड उसने लगाया है, क्योंकि दरख्त को जरूरत नहीं होती है नशोनुमा की। दरख्त तो ऑलरेडी बना हुआ है, वो तो सब कुछ तैयार है, उसको तो जरूरत नहीं है। और याद रखिएगा कि जो दरख्त होता है वो अपने पानी का बंदोबस्त खुद करता है, लेकिन जो छोटा बीज होता है वो अपने पानी का बंदोबस्त खुद नहीं कर सकता। वो उसको फीडर के साथ दूध पिलाना पड़ता है। देखिए, वो एक बहन ने एक बच्चा उठाया और उसको फीड कर रही है। ये खुद से ये ग्लास में दूध नहीं पी सकती, इसे फीडर की जरूरत है, इसे बोतल की जरूरत है, और इसे जरूरत है कि कोई इसको दूध पिलाए। यहां पर अब ये जो बात लिखी हुई है, और मैं जब इसको देख रहा था इसके रूहानी मायनों को, तो मुझे एक बात याद आ गई, और वो बात ये थी कि ऐसा दरख्त जो पानी के करीब लगाया जाए, बाइबल कहती है कि वो भरोमंद होगा, वो तरक्की करेगा, उसका पत्ता कभी नहीं मुरझाएगा। और वो पानी कौन है? वो मेरा और आपका जिंदगी का मालिक,
जिंदगी का पानी खुदावंद यीशु है। मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको, ये बड़ी बायसे बरकत आयत है। अगर आप, बल्कि बहुत दफा हम ज़बूर नंबर 1 गाते भी हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है, ज़बूर 1 को पढ़कर देखें, वहां पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। और ज़बूर नवीस ये कहता है कि वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, पानी की नदियों के पास लगाया गया है। और वो क्या करता है कि जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार आवर होगा, कंफर्म है कि उसे फल लगेगा। और बाइबल मुकद्दस यह हमें सिखाती है कि अंगूर का हकीकी दरख्त यीशु मसीह है, और वो मुझे और आपको अपनी डालियां कहता है। और वो ये भी कहता है कि जो डाली फल नहीं लाती वो काटी और आग में डाली जाती है। अजीज बहनों और भाइयों, बहुत जरूरी है कि मेरा और आपका लिंक खुदावंद के साथ रहे। और मैं जब इस हवाले को पढ़ रहा था, इसकी जो आखिरी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी वो ये थी कि वो कहता है कि तुम खुदा की खेती हो। अब खेती, खुदा की खेती होती क्या है? एक सवाल है, मैं आपसे करता हूं, खेती क्या है? फसल कह सकते हैं आप फसल को, कुछ और भी मुझे मेरी को हेल्प करे। फसल, चले फसल मान लेते हैं, और कुछ? खेत का तो समझ लगता है, खेत मुज़क्कर है और खेती मोनस है। क्या है? खेती, अच्छा, खेत में से अगर फसल निकल आए तो वो खेती है। अच्छा, ठीक है। लेकिन बाइबल मुकद्दस पैदावार है, भाई का भी जवाब ठीक था, इसका मतलब है। लेकिन बाइबल मुकद्दस इसके बारे में जो बात करें, मैं वो बात आपसे करूंगा। आप अपनी बाइबल्स को खोल सकते हैं, और स्पेशली इंग्लिश की बाइबल खोले तो आपको पता चलेगा कि खुदा इसको क्या कह रहा है। खुदा इसको टीम वर्क कह रहा है। हम अक्सर बात करते हैं ना खेती बाड़ी एक प्रोफेशन है, और प्रोफेशन कभी एक आदमी से नहीं बल्कि ग्रुप से बनता है। मानते हैं इस बात को, बिलीव करते हैं इस बात को। सो खुदावंद हमें ये कहता है कि तुम लोग इस प्रोफेशन में मेरे कोलीग हो, मेरे पार्टनर हो, मेरे साथ हो। इसका मतलब है कि लगाने वाले की अपनी जगह पर अहमियत है, पानी देने वाले की अपनी जगह अहमियत है, और खुदा तो है ही जो हमें वक्त पर बराबर करेगा। लेकिन मुबारक वो दरख्त है जो पानी के पास लगाया जाता है। और मैं और आप जिनकी बुनियाद खुदा के पाक कलाम के ऊपर रखी गई है, बाइबल कहती है कि हम जरूर ही तरक्की करेंगे। और जिस तौर से हमने अपनी संत याद देखी थी कुलसियों में से, उसका हमने दूसरा बाब और उसकी 6वीं और 7वीं आयत पढ़ी थी कि हमें उसमें जड़ पकड़ना है और तामीर होना है। और ये कन्फर्म है कि अगर हम खुदा के साथ रहेंगे तो हम ऊपर से भी बढ़ते चले जाएंगे और नीचे से भी हमारी जड़ें मजबूत होती जाएंगी। और ये इसकी एक बहुत बड़ी गवाही, मेरी अभी थोड़े मिनट पहले गवाही भी है कि सबूत है इस बात का कि इतने अरसे से जो लोग खुदा की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन जब बाइबल की इस डॉक्ट्रिन के साथ, इस बुनियाद के साथ जब उनकी बात होती है तो वो खुश होकर कहते हैं कि आज हमने हकीकी तौर पर जिंदा कलाम सुना है। और मेरे लिए और आपके लिए बड़े प्रिविलेज की बात है कि मैं और आप ऑलरेडी ऐसे पानी के पास लगाए गए हैं जो जिंदगी का पानी है, जो मुझे और आपको जिंदगी देता रहता है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, मेरे लिए और आपके लिए ये बड़ा चैलेंज भी है कि हम किस जगह पर खड़े हैं। क्या मेरी और आपकी तरक्की खुदा के कलाम के मुताबिक हो रही है? और दूसरी बात ये कि क्या हम इस बात को लर्न कर रहे हैं
कि जैसे पौल कहता है कि मैंने सीखा है। क्या आप सीख रहे हैं कि आपने कैसे बढ़ना है, कैसे तरक्की करनी है? आपको उन टिप्स का पता है जो बाइबल मुकद्दस में लिखे हुए हैं? आइए इन बातों को अपने ध्यान में रखें और हम जहाजी की तरह नुकसान उठाने वाले ना हो, बल्कि हम बरकत पाने वाले ज़कई की मानद हो। ज़कई बेशक उसका कद छोटा था, लेकिन खुदा ने उसकी अक्ल को खोल दिया। आमीन। वो जिस्मानी तौर पर नशोनुमा नहीं पा सका, लेकिन जो कुछ उसने पा लिया वो आप सब जानते हैं। अजीज बहनों और भाइयों, खुदा करे कि मेरा और आपका ज़हन खुल जाए कि ना सिर्फ हम अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी इस बात को लेकर आगे जाने वाले हों और हम और दूसरे आपके वसीला से बरकत पाएं। खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए अपने सरों को